गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वीडियो लेक्चर का वो है लिसनिंग। लास्ट टाइम एज यू ऑल नो दैट वी हैव डिस्कस्ड द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर, बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर and some other general barriers. So today we are going to discuss listening. Now what is listening? Listening is basically it is the active process of receiving and responding to spoken messages. It is not merely talking. It is to give one's attention to sound or action. So listening basically क्या है, एक active process है जहाँ पे आप receive करते हो messages को and accordingly you respond towards the spoken messages. And it is not merely talking, सिर्फ बातें करना नहीं है, it is to give one's attention to sound और action. बेसिकली क्या है, किसी भी साउंड और एक्शन को आपको अपना अटेंशन देना है. उसके बाद सेकंड क्या है, लेवल्स ऑफ लिसनिंग. अब कुछ लेवल्स होते हैं लिसनिंग में भी. द फर्स्ट वन इज इग्नोरिंग. तो इग्नोरिंग क्या है, by the term ignoring you understand that ignoring means you are not at all paying any attention to anything. Okay, ignoring, it is the lowest level of listening and which means not listening at all. Ignoring means sometimes आप किसी चीज़ को नहीं बिल्कुल भी सुनना चाहते तो you completely ignore that thing. Second, pretend listening. Now what is pretend listening? जहाँ पे आप सामने वाले को ये जताते हो दैट यू आर लिसनिंग एवरीथिंग बट एक्चुअली यू आर नॉट एट ऑल लिसनिंग, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू आर लिसनिंग टू वॉट इज बीइंग सेड. नेक्स्ट इज सेलेक्टिव लिसनिंग. सेलेक्टिव लिसनिंग वेयर आप सिर्फ कुछ पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हो जो आपको ज़रूरी लगता है विच यू वॉन्ट टू हेयर और लिसन, तो वो आप सुनते हो. देन देर इज अटेंटिव लिसनिंग. नाउ वॉट इज अटेंटिव लिसनिंग? Attentive means where you are paying full attention towards something. What the speaker is actually saying, you are paying full attention to that. You are concentrating. Okay. The last one is internal listening. Now what is internal listening? Listening to your inner voice or inner conscious. Sometimes you do something wrong, so आपकी inner conscious आपको allow नहीं करती. You feel guilty from inside, so you listen to your inner voice or inner conscious. That is internal listening. Next we have different types of listening. Now what are different types of listening? Informative listening. What is informative listening? Where the aim is to concentrate on the message being given. This may be the content of a lesson, directions, instructions, etc. So by the term informative listening we realize that informative listening is basically जहाँ पे हमारा मेन एम कहाँ होता है, जो information हमें प्रोवाइड की जा रही है उसे सुनना, ध्यान से सुनना. और वो किस रूप में हो सकता है, किसी चैप्टर का कंटेंट हो सकता है जैसे समरी, डायरेक्शन हो सकता है, आप किसी नई जगह पे जा रहे हो एंड आपको नहीं पता एंड यू आर आस्किंग फॉर डायरेक्शन, या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं. समटाइम्स यू अपीयर फॉर सम एग्जामिनेशन, तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं एग्जामिनेशन के. So anything which is giving you some type of information that comes under informative listening. Okay, next we have appreciative listening. Now what is appreciative listening? Where the listener tends to gain satisfaction from listening to certain type of music. It may include particular charismatic speakers or entertainers. These are personal preferences and may have been shaped through our experiences and expectations. So what is appreciative listening? जहाँ पे लिसनर को सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी सर्टन टाइप ऑफ म्यूज़िक को सुनने में. इट कैन बी सम पर्टिकुलर स्पीकर्स और एंटरटेनर्स. फॉर एग्जाम्पल देर आर सम स्टैंड अप कॉमेडियंस विच वी लाइक द मोस्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा. इन्हें सुनना हमें अच्छा लगता है विच इज़ गिविंग अस सम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. या कुछ ऐसे रिनाउंड स्पीकर्स हैं विच आर क्रिएटिंग सम इम्पैक्ट इन आवर लाइफ. सो ये बेसिकली किस पे होता है, पर्सनल प्रेफरेंसेस पे, और जनरली कैसे शेप्ड अप होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस या एक्सपेक्टेशंस पे. जब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है तो सामने वाले को भी हम वही सजेस्ट करते हैं. ओके, next we have critical listening. Now what is critical listening?
where the listener may be trying to weigh up whether the speaker is credible, whether the message given is logical, or whether they are being manipulated by the speaker. Now, what is critical listening? It has nothing to do with something very critical or difficult. क्रिटिकल लिसनिंग इज़ बेसिकली जहाँ पे लिसनर है वो ट्राई टू वे अप करता है या जज करता है. जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कोर्स में कॉलेजेस में, तो क्या होता है, आप डिफरेंट कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं. व्हाट डू दे से? दैट वी हैव such and such type of features, we have such facilities, the teachers are up to the mark and everything will be sorted in our college. So आप हर जगह जाके सब जगह से इंफॉर्मेशन लेते हो, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, एनालाइजेशन करते हो कि सामने वाला जो कह रहा है क्या उसकी बातों में कुछ वेटेज है, या आपको सिर्फ अपनी बातों में घुमाया जा रहा है, या उसका कोई लॉजिकल रेलेवेंस है हमारी रियल लाइफ में, या सिर्फ आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है. तो दैट इज़ क्रिटिकल लिसनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव एम्फैथेटिक लिसनिंग. व्हाट इज़ एम्फैथेटिक लिसनिंग? वेयर द लिसनर टेंड्स टू लिसन रैदर दैन टॉक. तो जहाँ पे लिसनर का मेन फोकस क्या होता है, सुनने पे, ना कि बातें करने पे. और जो उनके नॉन वर्बल बिहेवियर है वो इंडिकेट कर देते हैं दैट द लिसनर इज अटेंडिंग टू व्हाट इज़ बीइंग said. The emphasis is on understanding the speaker's feelings and being supportive and patient. तो जहाँ पे लिसनर सुनता है ना कि बात करता है, और जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो क्या होता है, आपके नॉन वर्बल बिहेवियर से पता चल जाता है दैट यू आर अटेंडिंग टू व्हाट इज़ बीइंग सेड, वट एवर द टीचर इज सेइंग यू आर अटेंडिंग टू दैट. एंड जो मेन एम्फेसिस है that is on understanding the speaker's feelings and being supportive and patient. When the teacher is teaching, so you are being supportive and patient and listening to the teacher very carefully. You are being very supportive at that time. So that is empathetic listening. Next we have discriminative listening. Now what is discriminative listening? We learn to discriminate or differentiate between different kinds of sounds in early life. It would be better to practice discriminatory listening in person, as we have to learn to discriminate not only in sounds but also non-verbal components of communication like tone and pitch of voice, gestures and other body signals. Now what is discriminative listening? जहाँ पे हमें discriminate या differentiate करना आए different kinds of sounds से हमारी early life में, और ये बेटर होता है हमारी लाइफ में अगर हम प्रैक्टिस करें डिस्क्रिमिनेटरी लिसनिंग को. और इससे क्या होता है, कहाँ पे पॉज ले रहे हैं हम, कहाँ पे फुल स्टॉप हो रहा है कम्प्लीटली, डिफरेंट आपके क्या जेस्चर्स हैं हैंड के, वॉइस टोन कैसा है, या अदर बॉडी जो सिग्नल्स मिल रहे हैं जहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए. दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी लिसनिंग. नेक्स्ट वी हैव एकेडमिक लिसनिंग. नाउ व्हाट इज़ एकेडमिक लिसनिंग? एकेडमिक लिसनिंग इसके नाम से ही सजेस्ट होता है एकेडमिक्स, विच इज़ डीलिंग विद योर एकेडमिक्स पार्ट. सो इट यूजुअली इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू फॉलो अ लेक्चर और डिस्कशन and writing adequate notes on it. There is also a need for us to be aware of the way lectures are organized, the particular kind of language that is used in the lectures. Most important skill for us is to learn to recognize the structures of a lecture, the main points and subsidiary points. So what is academic listening? It is usually involving trying to follow a lecture and writing adequate notes on it. There is also a need for us to be aware of the way lectures are organized. तो आपके लेक्चर्स कैसे डिलीवर किए जाते हैं एकेडमिक्स में, कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, किस पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन दी लेक्चर्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एकेडमिक लिसनिंग में. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल होता है जो हमें लर्न करना चाहिए, दैट इज़ टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लेक्चर, द मेन पॉइंट्स एंड सब्सिडरी पॉइंट्स, कि क्या मेन पॉइंट्स हैं एंड क्या सब पॉइंट्स हैं. और इसके लिए वी नीड टू प्रैक्टिस हाउ टू टेक नोट्स, कैसे नोट्स लिखने हैं. व्हेन द टीचर इज डिक्टेटिंग यू, यू हैव टू राइट डाउन द नोट्स. एंड देन रिकॉग्नाइजिंग लेक्चर स्ट्रक्चर, एक लेक्चर स्ट्रक्चर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इंटोनेशन. Basically intonation is rise or fall in
पिच टोन या वॉइस टोन वी कैन से, क्योंकि कभी भी आप एक मोनोटोन में बात नहीं करते. समटाइम्स योर पिच इज़ वेरी हाई, समटाइम्स योर पिच इज़ वेरी लो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंटोनेशन, कब राइज हो रहा है, कब फॉल हो रहा है, कब मीडियम टोन पे है. देन वॉइस एम्फेसिस, किस चीज़ पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रेलिवेंट पॉइंट्स टू समराइज द टेक्स्ट. उसके बाद क्या करना है आपको, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेनी है, सेलेक्टिव फिर एक्सट्रैक्शन करना है कि क्या क्या आपके लिए रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, एंड इवेंचुअली आपको टेक्स्ट को समराइज कर देना है. सो नेक्स्ट वी हैव डेवलपिंग इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स. अब आप एक अच्छे लिसनिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में. सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्पेंडिंग मोर टाइम listening than talking. Very important. You have to spend more time in listening rather than talking. Classrooms में आप देखते हैं, you tend to listen, you pretend to listen, and you are all the time involved in talking. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सुनने में लगाना है, ना कि बातें करने में. Then only you can develop your effective listening skills. Next we have not finishing the sentence of others. Sometimes we have that habit. हम क्या करते हैं, दूसरे का सेंटेंस ख़त्म भी नहीं हुआ and we start to speak up. So you have to wait for that, wait for the other person to complete the sentence, and then you have to speak. Okay, so you don't have to finish the sentence of others. Next we have not answering questions with questions. अब इसमें क्या होता है, sometimes the teacher is asking any question and you are also asking some question. So you don't have to answer the question with question. पहले टीचर को पूछने दीजिए एंड देन यू वेट फॉर योर टर्न एंड देन आस्क द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट है आपका लेटिंग द अदर स्पीकर टॉक बाय नॉट डोमिनेटिंग द कॉन्वर्सेशन. अब आपको अदर पर्सन को अलाउ करना है, लेट हिम स्पीक फर्स्ट एंड देन. आपको कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट नहीं करना. यूजुअली हम फ्रेंड सर्कल में ऐसा करते हैं, कोई बोल रहा है एंड वी आर टेंड टू डोमिनेट द कॉन्वर्सेशन कि नहीं ऐसा होगा. So you don't have to dominate. Then planning responses after others have finished speaking. तो responses आपको प्लान करने हैं जब दूसरों ने ख़त्म कर ली है अपनी बात, पूरी तरीके से बोल दी है. Then only you have to plan for responses. In between interrupt नहीं करना है. Then next, keeping the conversation on what the speaker says. Very very important. कभी कभी क्या होता है कि कोई कॉन्वर्जेसन करनी है एंड वी टेंड टू डेविएट फ्रॉम द कॉन्वर्जेसन. हम किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं रैदर दैन स्टेइंग ऑन द कॉन्वर्जेसन. जहाँ से स्टार्ट हुआ उसे छोड़ के हम किसी और ही टॉपिक पे चले जाते हैं. सो यू हैव टू कीप द कॉन्वर्जेसन ऑन व्हाट द स्पीकर सेज. जिस टॉपिक की बात की है, अगर हम यहाँ लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो हम किसी और चीज़ की बात नहीं करेंगे, हम लिसनिंग की ही बात करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग feedback. Providing feedback, very very important. Feedback is very very important in any scenario of life. Feedback एक टीचर के लिए भी बहुत important है, एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत important है. Then only you can grow as a person, you can develop yourself and enhance your skills. Okay, so that's all for today. Next topic हम next video lecture में discuss करेंगे. Thank you.